السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے طوفانی رات۔ وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھی، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکنڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلے جائیں؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے، کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم ہی ہمارے ساتھ چلو، اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ تانیہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے مذاق اڑایا۔ جی نہیں۔ چلو، اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے ایف ایم آن کیا، سب میوزک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر اس وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے ایف ایم پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز ایف ایم سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو ماند کر دیا۔ سنسان بیابان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ ایف ایم پر آر جے کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھیں۔ اسٹاپ اٹ یار، بند کرو ایف ایم کو، تانیہ نے چلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا، بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کرو! سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا، سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے، سخت ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھیں۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ ٹشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آر جے کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کو کھٹکھٹانے لگا۔ کون؟
मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई। यार दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद न माना। इसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई न था। अचानक खतरनाक हवाओं ने कार का रुख किया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ। सहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया। इसका वजूद भी खौफ के ज़ेरे असर था। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए, मगर वह बूढ़ा सा शख्स खामोशी से असा के सहारे खड़ा इसके बातें सुन रहा था। इसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। इसकी कमर में खम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मजीद घबरा गईं। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार ख़राब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। तानिया फ़ौरन कार से बाहर आई। यार, इस तूफ़ानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली ही चले जाते हैं। इस जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। इसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब इस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इस सब कदमों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार इस हवेली को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा नज़र तो ना आया, मगर एक वहशत ज़रूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ को रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 दुहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ था। बाएं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहाँ से मुसलसल आ रही थी। गर्ज की आवाज़ से इसकी आहट को मद्धम कर दिया। कितनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा, सैर ने कहा। इसका चेहरा इसके डर को जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, तुम ऊपर चले जाओ, आराम करो। बूढ़ा शख्स किचन में चला गया। फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से होती है, और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना। हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेरी हवेली को नीली रोशनी से चमका दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी बुझाने के लिए तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। इसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खुलते ही इस पर एक मखौटा गिरा। इसको देखते ही इसकी चीख निकल गई। इसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। इसने इसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और सख्त हवाओं की आवाज़ें निहायत भयानक लग रही थीं। खड़खड़ की आवाज़ें इसकी नींद को साथ ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट इसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है? कौन है?
लरजते हुए पूछा, मगर कोई जवाब न आया। इसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई न था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी मगर अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया। बिजली चमकी तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ कोई दरवाज़ा न था। वो दरवाजे जिनके ज़रिए सहर, वाजिद और साजिद अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। इसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी मगर वहाँ कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में वो सो नहीं पा रहा था। इसने दीवार की तरफ करवट ली। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा है। इसने कुन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की मगर अंधेरे में कुछ नज़र न आया। इसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई ना था। खौफ इसके चेहरे से ज़ाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर इसने दरवाज़ा न खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई और इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। पुरस्रार खामोशी ने आ घेरा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा मगर कोई ना था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने लगी। तानिया का दरवाज़ा आधा खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ मगर वहाँ तानिया मौजूद ना थी। तानिया, इसने पुकारा मगर कोई जवाब न आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा मगर कोई जवाब न आया। आहट मजीद वाजिया हो गई। वो लरजीदा कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नंगे पाँव था मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम होता जैसे कोई इसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। इसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नज़र न आया। एक तेज़ हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी मगर जब वो इसके पास गया तो दस्तक की आवाज़ गुल हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमों कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, इसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज़ गूंजी। इसका सांस फूल गया। आहिस्ता से पलटा। वहाँ तानिया थी, जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम? उसकी आवाज़ हकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तानिया ने घबरा कर कहा। तुम ठीक कह रही हो। हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज़ कदमों के साथ वो वापस ऊपर आ गए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतारकर ज़मीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने ज़मीन से उठाकर इसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। इधर उधर देखा, खिड़की खुली थी। लगता है हवा कोई ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। वो उठा और खिड़की बंद करने लगा मगर तेज़ हवाएं मुज़ाहमत कर रही थीं। इसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद इसके बाजू पर नमूदार हुई। इसने बगौर देखा, वो खून की बूंद थी। इसने बाहर झांका मगर बाहर कुछ ना था। दोबारा अपनी बाजू की तरफ निगाह दौड़ाई। वो खून अब गायब हो चुका था। यार वाजिद, लगता है शहर का असर तुझ पर भी होने लगा है, अपने आप से कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर ये मुस्कुराहट इसी वक्त गायब हो गई जब इसने अपने जेब तन की गई बुनियान पर खून के छींटे देखे। इसने इन्हें भी मामूली साना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर बेड पर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, एक तेज धार खंजर का साया इसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सहर इनकी तरफ दौड़ते हुए आई। इसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ? तानिया ने इसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ, साजिद ने पूछा। इधर कोई है? बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, इसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ पर मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गर्ज की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल इनके सर पर हों। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पाँव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़ेह तौर पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है, मेरे पाँव गीले हो रहे हैं। सबकी नज़रें ज़मीन पर थीं।
बिजली दोबारा चमकी, सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पांव खून में सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब इनके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सैर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगीं। इनकी नज़र खून के मखज़ की तरफ गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था, इसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थीं। सैर ने चीख मारी और इसकी चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा करती, इसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट इनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज़ ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज़ थी। वो तीनों उसे वहाँ देखकर डर गए। वो बनियान और पैंट जेब तन किए हुए था। उसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। मगर तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो इसकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो इनकी बातों पर हैरान था और इनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को इस पर फेंका। पागल हो गए हो क्या? इसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी ज़ोर से मारोगे तो खून तो बहेगा। उफ, सब इसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद झुला कर बोला। यार हम जितना जल्द हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में ज़रूर कुछ ना कुछ है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वाजिया तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार दरवाज़ा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसुध। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ कोई नहीं था। बिजली की चमक भी इस आवाज़ के मुजस्सम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नज़र आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज़ तेज़ से तेज़ हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज़ सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनी ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें हवेली के अंदर सुनाई दे रही थीं। 4 लाशें इसमें रखी जा चुकी थीं। सब इन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज़ काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म की खराशों के निशानात ना थे, सवाए एक लाश के। इसका सर धड़ से जुदा था। एक तेज़ धार खंजर से इसका सर काटा गया था और खंजर भी आले के पास से मिला, मगर इस पर चारों की उंगलियों के निशानात थे। इस खंजर से सबकी नब्ज़ काटी गई थी या फिर खुद इन्होंने काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही।